Hello everyone, my name is Nimisha Nigam. I cleared IBPS PO 2019 examination and have been appointed as a provisionary officer in Bank of India, and today I am here to share with you my strategy with which I appeared for my prelims, mains and my interview. So, in the year 2016, when I completed my engineering, I decided that I do not want to work for any IT firm. Rather, I would go for the preparation of the government examination. By the end of 2016, I decided that I want to do the preparation for the banking sector and started up with my preparation. I appeared for SBI PO 2017 examination but was disqualified at the prelims level only. At that time, I started giving mocks on daily basis, and by doing so, I've qualified the prelims examination of IBPS PO and IBPS clerk examination of 2017. But because of my lack of exposure with the type of questions that have been asked in the mains examination, I was disqualified at the mains examination of both of them. Then I started the preparation for the mains examination also. For that, I started giving mock test of Olive Board, and my quants was weak, so I followed Infinitesimal Sir's videos that have been available at YouTube, and I used to follow his approach, tried to imbibe them and do my questions with his approach. In that way, I was able to improve my quantitative aptitude a bit. After that, in the year 2018, because of certain severe health issues, I was not able to face most of the examination, and a few examination which I faced, I was disqualified at the prelims level only. So I was disheartened, but I somehow tried to bounce back, and I did so and appeared for SBI PO 2019 examination, qualified the prelims and the mains examination but could not make it to the final merit list. The same happened with ESIC UDC, FCI and some other examination. In the RRB examination, I was disqualified at the prelims level only, but finally, I cleared IBPS PO pre and mains examination and cleared the interview also, and finally got my selection. So I would like to mention my individual strategy which I followed for all the sections to clear the examination. Now, as far as English is concerned, English is a section which is completely reading based, and nowadays banking examination ask questions that are completely reading based in the English section. So I would strongly recommend that आप लोग जितना ज़्यादा रीड कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा. सो आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी हैबिट बनाइए, एडिटोरियल्स को रीड करिए. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज दैट आई यूज्ड टू रीड एडिटोरियल्स, make my own analysis of it. I used to write my own analysis using the vocabulary that was being mentioned in the editorial itself. उससे मेरी vocab भी तैयार होती थी, मेरी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बढ़ती थी, और साथ ही साथ मेरा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी तैयार होता चला जाता था, जो कि आपके एग्जामिनेशन के समय पे तैयार करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये करिए, तो उससे आपकी इंग्लिश और आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी साथ ही साथ तैयार हो जाएगा. अगर आप एक बिल्कुल ही न्यू कमर हो और आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो आप कोई भी ग्रामर बुक को मार्केट से ले लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, ग्रामर रूल्स को पढ़ लीजिए. उसके बाद आप यूट्यूब चैनल पे उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्विजेज़ या क्वेश्चंस लगाइए और डेली बेसिस पे मॉक्स लगाइए. और क्विजेस तो आपको डेली बेसिस पे और मॉक्स तो डेली बेसिस पे करने ही हैं. इससे आप खुद देखेंगे कि आपकी इंग्लिश इन कमिंग 2 to 3 मंथ्स इम्प्रूव हो जाएगी. फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, तो वो एक ऐसा सेक्शन होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अच्छा होता है. दो मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो उसके लिए मैंने डेली बेसिस पे मॉक्स तो लगाए ही, और मेंस के मॉक हफ्ते में 2 बार लगाती थी मैं. उसके अलावा मैं इन्फिनाइटसिमल सर के वीडियोस देखती थी, उनकी अप्रोच को फॉलो करती थी. ये मेरी स्ट्रैटेजी थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए. और मुझे ये भी पता था कि मैं इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊँगी, तो मैं इस सेक्शन को एक इतना करके रखती थी कि मैं इसकी कट ऑफ को क्रॉस कर लूँ, और इससे कट ऑफ से एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स या 5 to 6 मार्क्स ऊपर लाऊँ. और इसके अलावा जो भी इसके बचे हुए मार्क्स हैं, मैं बाकी सेक्शन से बैलेंस करूँ. और दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बैलेंस योर एग्जामिनेशन. सपोजिंगली यू आर वीक इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, देन यू शुड नॉट लूज होप. rather you should try to
choose other sections where you can score high, and for that I chose the GA section and the English session. और मैं GA और इंग्लिश में इतना ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करती थी जिससे कि मेरे जो मैथ्स में अगर मार्क्स कम भी हो तो वो उन दोनों से कवर हो जाए. बाकी एज फार एज रीजनिंग इज़ कंसर्न, तो रीजनिंग इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम. आई यूज टू डू 4 puzzles ऑफ प्रीलिम्स एंड 2 puzzles ऑफ मेंस डेली. एंड बट मैं कभी भी एग्ज़ाम में, मेंस के एग्जामिनेशन में कभी भी पज़ल से स्टार्ट नहीं करती थी. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप पज़ल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका टाइम भी जाता है और आपका अगर कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है अगर आपका वो पज़ल नहीं बना, तो उसकी वजह से आपका फेथ अपने एग्जामिनेशन पर से उतर जाता है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप मिसलेनियस क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस करिए. और मिसलेनियस में जो बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट होता है, जो कि स्टेटमेंट और अजम्पशंस का पार्ट होता है, आप उसको प्रायर एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले उसको प्रैक्टिस करके चाहिए, जिससे कि आप उसको जब करिए तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रहे. और वो एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स फेच करा सकता है. सो डू दैट questions. According to me, these questions should be done, should not be left away. And for GA, you follow one particular source religiously. I used to follow Affairs Cloud daily. मैं डेली उसको पढ़ती थी, अपने खुद के नोट्स बनाती थी और उसमें जो बैंकिंग और इकोनॉमी रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ेस होती हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए. उसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ होता है आप उनको भी देखिए कि वो कौन से टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर स्टैटिक पोर्शन में देखेंगे तो आपके जो टर्म्स पिछले 6 months में यूज़ करे होते हैं वो उन्हीं टर्म्स की डेफिनेशंस या उन्हीं टर्म्स के फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं. यही उनके एक स्टैटिक पोर्शन होता है. और कोई भी बैंकिंग की हिस्ट्री तो वो आप पूछते नहीं हैं पेपर में. तो आपको जो भी आपका जो करंट में बैंकिंग रिलेटेड या इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ठीक से पढ़नी है, तो आप GA में अच्छा कर लेंगे. बाकी आपको क्विजेज़ ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ वीकली बेसिस लगानी है GA पोर्शन की, जिससे कि आप अपने GA पोर्शन में मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकें. नाउ एज फार एज इंटरव्यू इज़ कंसर्न, तो इंटरव्यू आपका एक पर्सनालिटी असेसमेंट होता है. वो आपके पर्सनालिटी को कम्प्लीटली एवेल्यूएट करता है कि वेदर यू आर नॉट गेटिंग वेरी अग्रेसिव इन आंसरिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और यू आर नॉट गेटिंग वेरी ओवर कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. या आप कोई भी आंसर करने में किसी भी क्वेश्चन के आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो अगर कोई सब आंसर आपको नहीं आता है. यही सब वहाँ पे जजमेंट होता है. एंड मोर ओवर अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता है तो आप सिंपली सॉरी बोल सकते हो, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है. बट अगर आप किसी भी आंसर को गलत तरीके से देने की कोशिश करते हो तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है. अगर आपको अपने इंटरव्यूअर्स के सामने कॉन्फिडेंटली जाना है तो आई वुड रिकमेंड कि जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है उसके पहले के पास्ट 1 to 1.5 months के न्यूज़पेपर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं और उस पर्टिकुलर वीक के न्यूज़पेपर को तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं. आई पर्सनली फेल्ट दैट कि न्यूज़पेपर रीडिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था इंटरव्यू में, तो वही मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी कि आपकी जो भी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में और आपके बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है एंड इवन आपके वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बैंकिंग रिलेटेड इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो आप अफेयर्स क्लाउड को भी रीड करते जाइए, बट आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स ज़रूर पढ़िए. वो न्यूज़पेपर आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू में. सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी विच आई फॉलोड फॉर अपियरिंग इन माई एग्जामिनेशन. आई होप वो आपको भी हेल्पफुल हो एंड यू ऑल्सो गेट सक्सेस सून. थैंक यू.